Flipkart gave me a chance of traveling through Russia as a digital nomad while working in Flipkart. Nomad Train is an initiative in Russia where a bunch of digital nomads meet together on a train and they build stuff. What is digital nomad? I think everyone who is working remotely, who need not really. हमारा गोल बाहर से एंटरप्रेन्योर्स को बुलाना नहीं है. हमारा गोल है सिक्किम में ही सिक्किम के लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना. Okay. सिर्फ पैसे को ही वेल्थ नहीं कहते. वेल्थ जो होती है ना वो बहुत सारे टॉपिक से मिला के होती है जिसमें मनी इज वन कंपोनेंट. What made you choose Sikkim as a place to build a first India's digital nomad? फर्स्ट इज. Hi Arpit, welcome Hello. to TST podcast. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर हैविंग मी. Hi. So can you give us a little bit brief about you? ओके. So where you come from, where you belong, what is your education qualification, and what way you have worked and all. आई एम फ्रॉम ग्वालियर, मध्य प्रदेश. Okay. I did my schooling over there. My childhood memories are all from Gwalior. Then I went to Manipal for engineering. So after Manipal, I've always been an engineer. I was very early engineer in LinkedIn, So you pursued computer science. computer science Okay. from Manipal. And since then, I've still till today, I am a computer science engineer. That Okay. is how I identify myself. I'm a builder. I use technology for every problem that I encounter. That Okay. is how I solve my problems. So you passed out in which year? 2000? 2008 2008 from Manipal. from Manipal. Okay. Then And then LinkedIn happened, then Paytm happened, then Flipkart happened, then I had my own startup. so when you quit your last MNC job? So I keep coming back to the startups and then I joined the corporate life again. Like for example, I was recently associated with TVS Motor Company Okay. and I was looking at their refurbished vehicle business, all the Okay. vehicle that you get in exchange. Hmm. We used to prepare them again, all those old scooters, something that can be sellable again in the market. So I used to head the engineering, product, growth and design for TVS Motor Company, for that segment of TVS Motor Company, refurbishment ka. And I'm still transitioning out right now as we speak. I'm still handing over the responsibilities because there were a lot of responsibilities at my head. And now I'm moving into social sector. Okay. Uh, So before coming to social sector, so what was your first venture and at what age or what year you started it? There were a couple of ventures that I've done. Okay. I can maybe talk about each one of them quickly. First one was called Epic One. It was a coalition loyalty program. When I say coalition loyalty program, that means you have 5 rupee points from CCD and then 5 rupees from Shopper Stop. It is not possible to spend the 10 rupees together at a third shop. And that is what we did Right. through engineering. And then we got Bangalore International Airport as a project to build the coalition loyalty program for the airport. And then we got acquired by Reward 360. Wow. And then I was CPO of Reward 360 for some time, Chief Product Officer for Reward 360. And looking at So this was in year 2000? 2019, Early COVID. before COVID. Yeah, much before COVID. 2019, 2020, that time zone. Then after Reward 360, so during COVID, I quit Reward 360 Okay. and I started another venture of mine. This time it was called YOLO. 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 The full form for YOLO was Youth Online Learning Opportunities. Okay. And it was basically a community platform for students so that they can build groups and clubs over an app. So the interface were more like Reddit. So people can come talk about a thread, but related to a particular club. Like for example, if you are a student, you like astronomy. So there will be a lot of communities on astronomy. Then there will be a lot of communities on drama, on music. So a lot of students were coming together through communities, although they were part of different curriculum, different degrees. So this product was very useful in universities. We did a pilot with Goa University. Okay. And we had an MOU with Jyoti Nivas College as well. So we did a pilot there as well. And so we ran YOLO for quite some time. And then I left YOLO for TVS Motor Company about 2.5 years back. So this was 2022. 2023 mid, for 2 years, two and a Okay. half years back, 23. And I joined TVS Motor, DriveX basically.
And since then I'm here. Now this is my next venture. So in your two ventures which you had built, did you make good money? I made decent money. I think, see, the thing about money is it takes a lot of scale for a founder to finally make money. It is a long journey for founders. Founders are generally not the first people who make money in any of the startups. And I think ethically also that is right. Okay. In my ventures also, I made sure that my team makes money before I make money. If you take the example of Epic One, we got acquired for the sole reason because we wanted to survive. During COVID, airport was shut and the project was a little bit under risk. So in order to safeguard the interest of the team and their jobs, we took the opportunity of being acquired. So most of the time when you do these kind of deals, when you try and do things for your team, you make compromises. And I'm very happy with the compromises that I have made for my team, because those people are still with me, and whenever I make anything, I know whom to call and they will never say no. And that kind of a trust is something that I've earned. So if you will say, have I made wealth? Yes, I've made a lot of wealth. Wow. Money? No, not that much, but a lot of wealth in a different format. Okay, good to hear. Then after TVS, you left TVS recently. Yes, I'm still transitioning out. So what made you quit TVS? So what made you quit TVS? And TVS was a great company and I was having a lot of fun over there. Work was very interesting. There was a huge learning curve, full marks to TVS and its culture. I am quitting because I am building something which is closer to my heart. Okay. Which started as a hobby project in Sikkim, but now I think the project has reached a stage where it requires full attention of mine for it to be successful. Okay. And that's why I'm quitting. More because it is the need of the hour. Not that I want to, but I have to. Yes, coming back to this, your hobby and the project. So can you brief more on that? What exactly it is? Sure. I have, so basically I'm building a digital nomad hub in Sikkim. Wow. We want to establish Sikkim as a go-to place for every remote worker, anyone who wants to work in peace with a high productivity environment, within a high productivity environment, within nature, who wants to be healthier and who wants to be healed while working. And I think that is the need of the hour. While I was working here, I've seen Bangalore, I've seen Gurgaon, I've seen Noida, Delhi. In all these places, I've realized that a lot of people who are working from home are not really very productive because of the disturbances that they have at home, their regular life, and also the monotonous nature of home. Like that window, maybe you are in a very crowded area. These places are not the most productive places. And then these remote workers, they get stuck into this constant blaming of themselves that, hey, am I productive? Am I delivering or not? Then they take a lot of stress on their head. So I thought, why not I build a place where anyone who is going through a dilemma of not being productive, or like the writers have a writer's block. You must have heard about writer's block. Then similarly, all artists, maybe a painter, maybe a songwriter, a lyricist, everyone goes through a phase when they're just stuck. Okay. And I want to ensure that if you come to Sikkim, you will be unblocked. What made you choose Sikkim as a place to build a first India's digital nomad? First is the support from the district administration over there. And so I want to understand, did you come with this initiative, or government came with this initiative and you joined them and working on this? How it looks? So district administration of Pakyong, the IS officer. Pakyong is a district in Pakyong is a Sikkim. district in Sikkim. Okay. So the district administration of Pakyong district. Okay. The collector over there, district magistrate and DC is Rohan Agrawani. Okay. And he was the person who wanted to build something for the local people. Okay. Wherein we can inculcate entrepreneurship in each family. Chief Minister of Sikkim
believes in the fact that every family deserves one entrepreneur in order to make sure that we can bring those families into the mainstream, because there are a lot of villages, a lot of families which are isolated, and dependence on government job is very risky for a lot of people, because there are very handful of government jobs available. So people who don't get the government jobs, then there has to be a plan B for them. So Rohan Agrawani has been very vocal about the fact that, hey, what can we do to create a local economy over here? And he was inviting ideas, and that's when we came in. So how you met Rohan? How you got to know about this initiative and how it all started? Can It you all break- started because there were certain libraries which I have a co-founder in this. My co-founder's name is Mr. Prem Prakash in this digital nomad in initiative. Digital Nomad initiative that we are doing. So where he belongs to? He belongs to Bihar, Okay. but he has been building libraries in the remotest part of the country. Wow. He has built up more than 450 libraries so far in the remotest areas of Bastar. He has built libraries inside the central jails. He has built libraries in Nagpur, in East India. He has built a lot of libraries. In Sikkim, he has built libraries. So he has worked with Mr. Rohan Agrawani before. Okay. And that's when Rohan Agrawani was thinking about this, he invited applications. And Prem happened to hear about that application. That's when he contacted and he said, hey, can we talk about digital nomads here? So when they were open for the applications, how did your co-founder speak to you? What were the things he saw in you that he felt and he selected you as one of the guy who can take this initiative up and do something? So I've been a digital nomad since, I don't think digital nomad term was even popular. Wow. Think it this way, that I have backpacked about 20 countries so far. I was advocating digital nomadism when I was at Flipkart in 2016. Flipkart gave me a chance of traveling through Russia as a digital nomad while working in Flipkart. So I had a job at Flipkart and I was doing Trans-Siberia while writing product requirement docs and delivering and attending daily stand-ups. There is a decorum and there is a discipline that you need to show as a digital nomad. Digital nomads are very disciplined. So we are not on the road all the time. We know how to find a place where we will work for 8 hours every day. We will clock 8 hours every day. We know how to keep ourselves healthy. We know when to eat, what is right for us. And then only on the weekends that we know that we have to commute to the next place. There is a way in which a digital nomad work. And I was following exactly that trail. I have even attended, there's something called as Nomad Train. And I was part of the first cohort of Nomad Train. Nomad Train is an initiative in Russia. Now it is across Asia, where a bunch of digital nomads meet together on a train and they build stuff, they build things. So in our first digital nomad meetup on Nomad Train, so we met on the Trans-Siberian route. We traveled till Siberia and we discussed a lot of things. Like, for example, there was a strong push from this community around digital nomad visas for certain countries. Like, can the digital nomads have a different kind of visas? Because a tourist visa is not something that suits our need. We are slow travelers. We move one place to another and we contribute to the community. Our way of contributing is very holistic. We are not only contributing to the economy, we are not just going there and spending money on lavish things, not at all. We go there, we find out that, okay, what is the kind of knowledge that we can give to this society? Can we also hire people? Can we take help from the people? So digital nomads is a very healthy bunch of people for any society to be in. Okay. And I've been doing it since 2013, 2014. I can call myself as a digital nomad. I've worked remotely for many organizations before while traveling.
And so this was very close to my heart, and Prem always knew that I kind of understand this segment very well. Also, Prem has been my co-founder before also. So YOLO, Prem was one of the co-founder. So we have built a company before, so we had that trust. We treat each other with a lot of respect and almost like brothers. So that compatibility is very difficult to find, and I find that trust in Prem. And I think it's a very mutual trust, and that's why. That's where you came across the application. You guys planned a thing. Yes. And then you guys applied. We applied also, and there was a lot of risk also. Initially, we did not know that we will be able to build something like this. But Prem and I had this hunch. Prem trusted me, and so it was also in a way that not everyone can take a risk at every point of time in their life. Just luckily, I am at a position where I can take that kind of a risk today, and that's why we took the plunge. Even he can take that risk. That's why. Maybe at some other point of time, we couldn't have taken the risk, but now we can. So we took the plunge, and I'm very, very happy with whatever that we did. So in your terms, what is digital nomad, or who is a digital nomad? See, I think everyone who is working remotely, who need not really go to a particular location to deliver their work and are independent of the location, can be treated as a digital nomad. Okay. Also, digital nomads is not a permanent thing. It's a very impermanent, temporary state of mind. So for example, today if you're running a company here, you need not be a digital nomad. But maybe after 6 months, you might decide that you have automated everything and you need not be in office today, but a lot of work you need to do in silo. There's a lot of thinking work that you need to do. Maybe you need to do a lot of partnerships. You need to do a lot of online meetings. Maybe you have to be on the road. And the moment you become that kind of a person who's delivering your work through internet, through technology, remotely, independent of location, you become a digital nomad. It could, like I said, it could be a temporary phase. You are a digital nomad for 6 months, then you are not. That's also possible, because monotony of life is such. And also, see, the reality of life is you have to come back to your base locations. There are always a base location for everyone. Every digital nomad makes a base location. Either it could be Bangalore or it could be Bombay. Even international digital nomads always have a base location. So once they are tired, they have to go back to their home countries to get their new visas and to relax their mind, to deliver work, to sometimes meet the client, to get the payments. For a lot of stuff, you have to go back to the base location. Okay. But while you don't have to be at a particular place, I would recommend then roam around, because the world is too big and it's too beautiful. So why don't you see a new sunset every week? Not every day, because like I said, you have to be clocking 8 hours every day. Be very disciplined to be a successful digital nomad. Okay, wow. So coming back to the application which you guys submitted, so it was in Sikkim, Pakyong district, right? So the administrative came up with this initiative, then you guys applied for it. Yes. So what was in that application, and how did you choose a place that you were gonna turn it into digital nomad village? So did you guys visit before applying it, or how it was? It was not an application with a fixed idea. Even the idea was very fluid. The idea was that we have to inculcate entrepreneurship in every family. There were many ways of doing it. So when we went to Sikkim, we introduced this idea to Mr. Rohan Agrawani, and we said that in India. When this was? Which month? This was about 6 months back, about 6.5 months back. December, January, that kind of a time zone, somewhere around that. And we said that there is an opportunity also. Opportunity is that just like how we have Chiang Mai in Thailand, we have Lisbon, we have Bali in Indonesia, there are many such unique spots where a remote worker is very comfortable in going. Yes. Like you have no fear of going to Bali with work, because you know you will find a good internet. True. But finding that kind of a place in India, which is equally beautiful, is very difficult. So if you're coming to India, if you're traveling in India, and if I will say that you have a lot of work to do,
Where will you go? What do you think? Where will you go? You have any options? Maybe hostels, few hostels. Okay. Like I've been to Kodaikanal, I know that's a But place. you are also talking about a brand. You're not talking about a place. Okay. That means you're not still trusting. You don't know what is that What? place. Wherever Zostel will be, you will go, right? Yes. That is the point I'm trying to make. Hmm. कि there is no proper geography. जैसे चियांग माई में एक geography है, जो चियांग माई थाईलैंड में, Okay. बाली एक geography है. आपको ये नहीं सोचना है कि बाली के अंदर हॉस्टल होगा तो ही इंटरनेट मिलेगा. Okay. तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जब कोई इंटरनेशनल ट्रैवलर आता है तो उसको हॉस्टल नहीं पता होगा. ये इतना बड़ा या कोई भी फॉर दैट मैटर कोई ब्रांड नहीं पता होगी. उसको ये पता होगा, होना चाहिए, एक समय हम चाहते हैं, वी सी दैट फ्यूचर, कि जब वो इंडिया आएगा तो दो तीन तरीके का टूरिस्ट आता है. एक टूरिस्ट ऐसा आता है जो ताजमहल देखेगा, जयपुर जाएगा, दिल्ली जाएगा, वो ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल का सर्किट कंप्लीट करेगा, राजस्थान घूमेगा. अलग टाइप का ट्रैवलर है वो. एक ट्रैवलर है जो गोवा जाएगा, पार्टी करेगा, बीचेस पे जाएगा, वो एक अलग टाइप का ट्रैवलर है. बट देर आर सो मेनी ट्रैवलर्स हु आर रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड ऑल द टाइम. एंड जब वो काम लेके आते हैं ना तो वो इंडिया चूज ही नहीं करते. वो स्किप कर जाएंगे. वो इंडिया को सीधे थाईलैंड चले जाएंगे या सीधे इंडोनेशिया, बाली चले जाएंगे. तो हमने बोला कि हाउ कैन वी मेक इट ईजियर चॉइस. और अगर हम ये बोलें हर डिजिटल नोमैड को कि आप सिक्किम आ जाओ, सिक्किम में वॉट एवर दैट यू नीड विल बी देयर. सिक्किम के अंदर एक हम पूरा हब क्रिएट कर रहे हैं डिजिटल नोमैड्स के लिए. एक पूरी की पूरी टाउनशिप क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे विलेज एक पार्ट है, जिसमें विलेज से तो हमने सिर्फ हॉस्पिटैलिटी सॉल्व करी, राइट? Yes. लेकिन व्हाट अबाउट अदर थिंग्स, कल्चरल इमर्शन, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्रेनिंग देनी है, वर्कशॉप्स होती हैं बहुत सारा पेरिफेरल एक इकोनॉमी बन जाती है. एक अगर डिजिटल नोमैड पहुंचेगा तो हो सकता है कभी उसका माउस पैड खराब हो जाए और उससे वो बोलेगा यार मुझे एक ये यूएसबी का वायर चाहिए या मेरा ये चार्जर खराब हो गया है. तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये यहाँ नहीं मिलता. अगर उससे लॉन्ड्री करानी है तो, और वहाँ पे बारिश होती है, तो लॉन्ड्री और ड्रायर दोनों अवेलेबल होना चाहिए. अगर उसे प्रिंट आउट कराने हैं या कुछ कराना है, अगर उसे कॉन्फ्रेंस रूम चाहिए तो उसे कॉन्फ्रेंस रूम मिलना चाहिए, उसे प्रोजेक्टर चाहिए तो उसे प्रोजेक्टर मिलना चाहिए. डिजिटल नोमैड्स के जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं उसको फोकस में रख के कोई भी एक सिंगल एरिया नहीं डेवलप हुआ. और हमने बोला कि अगर हम ये विजन लेके चलते हैं कि लोग इंडिया अगर आए और काम है तो उन्हें सीधा पता हो कि जब मुझे काम है मुझे सिक्किम जाना है. ओके. ग्लोबली, इंडिया में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका काम बैंगलोर में नहीं हो रहा, तो मैं आपको ये बोलूँगा गोवा माइट नॉट बी ए ग्रेट चॉइस बिकॉज यू माइट गेट वहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड. पॉसिबल है क्योंकि आसपास माहौल नहीं होगा काम करने का. आपके रूम में डेस्क होगा लेकिन आप उस डेस्क पे नहीं बैठोगे. सिमिलरली अगर आप ऋषिकेश जाओगे तो वहाँ योगा का सीन है. आप पहाड़ों में जाओगे वहाँ अलग सीन्स हैं. तो एक सीरियस फोकस्ड प्रोडक्टिविटी प्लेस कोई नहीं है इंडिया में. एंड वो जो गैप है वो हमने जब पिच किया कि हम ये फुलफिल कर सकते हैं, हमें सभी का सपोर्ट मिला वहाँ पे. हमें मैडम पेमिन लेप्चा जो मैम है हमारी वहाँ पे, जो एमएलए हैं, पैक्योंग की एमएलए, ओके, मैम ने हमें बहुत सपोर्ट किया. जो वहाँ के एमपी हैं उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया. पूरा जो आप कहेंगे कि मतलब इंडिया थोड़ा सा इन सब चीज़ों में लोग इंडिया को सोचते हैं कि यार यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता, गवर्नमेंट का. हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है. कुछ ऐसे इतने अच्छे एरियाज हैं, अच्छे स्टेट्स हैं, जैसे सिक्किम का मैं डेफिनेटली एग्जांपल दूंगा. मैं सब लोगों को बोलूँगा कि आप लोग एक बार सिक्किम में गवर्नमेंट के संग काम करके देखिए. सिक्किम में एक वो फॉरवर्ड थिंकिंग है. हमें जो हमारे एमपी हैं सुब्बा सर, उनसे इतना क्लियर हेल्प और गाइडेंस मिलता है कि जितने भी और डिपार्टमेंट्स हैं जिनके संग मिलके हम ये टाउनशिप का सपना देख पाते हैं, जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट या लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, सड़क बनाना है, स्ट्रीट लाइट लगानी है, उस गांव में पानी नहीं था, पानी पहुंचाना है, ये हमारे बस की नहीं है. ये सब हम कर भी नहीं सकते, हमारे बस की ही नहीं है. लेकिन गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया कि अच्छा आपको ये टाउन स्टैब्लिश करना है, इसके लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए ये हम किसी ना किसी
मतलब उनकी कोई ना कोई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंदर ये आता है। अगर आपको गांव तक सड़क पहुंचानी है, लाइट पहुंचानी है, पानी पहुंचाना है, तो ऑलरेडी ऐसी स्कीम्स हैं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपको बस प्रायोरिटाइजेशन ही करना है। आपको सिर्फ जाके वो सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखानी है और वो आपका काम होता है। Okay. तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। सबने इस सपने को साथ में देखना शुरू किया। Okay. कितने लोग इनिशियली जुड़ गए? How many you were discussing this project? सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीसी और डीएम हैं वो जुड़े। उनके साथ जो उनके असिस्टेंट हैं वो जुड़े। एमएलए मैम जुड़ी, जो एमपी सर हैं वो जुड़े। फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट जुड़ा हमारे साथ। टूरिज्म डिपार्टमेंट में प्रधान मैम ने बहुत हेल्प करी हमारी। इस तरीके से जुड़ते जुड़ते then you and your me and Prem and then there was a lot of other volunteers. Okay. चिराग करके एक इंसान था वो जुड़ा, दीपांश जुड़ा। हमने एक आर्किटेक्ट को बुलाया जो ऑन प्रॉपर्टी रही 3 महीने, क्योंकि कोई रूम रहने लायक नहीं थे। सारे के सारे रूम्स हमने बनाए और मतलब किसी का स्ट्रक्चर था, किसी का ढांचा था, कोई ख़राब थे रूम्स, किसी कोई रहने लायक नहीं थे। अगर कोई रूम्स उनको वापस से पूरा रीडिस्कवर किया उन रूम्स को। तो एक इंटीरियर डेकोरेटर आर्किटेक्ट प्रॉपर्टी पे रुके 3-3 महीना। So this was in Jan, Feb, March. लास्ट 3-4 मंथ्स, पिछले 5 महीनों से काम चल रहा है। Okay. So जब when you guys decided to go ahead with this project, which was that place you all chose and why? See, we chose Yakten because Yakten ना एक क्लस्टर है। Okay. जो कि बहुत परफेक्ट सा लगता है। अगर आप भी जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो याक्टेन में क्या है कि एक पूरा का पूरा ऐसा पहाड़ जैसा है और पैक्योंग में बिल्कुल हिल पे है, ऊपर है। तो पैक्योंग नीचे है और पैक्योंग के ऊपर अगर आप देखोगे तो एयरपोर्ट को क्रॉस करने के बाद वही आता है। सबसे पहली बात ये थी कि हमें हमारे दिमाग में ये बहुत क्लियर था कि आज नहीं तो कल ये एयरपोर्ट ज़रूर चालू हो जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट चालू हो गया था पिछले साल। बीच में अभी थोड़े से टाइम पहले ही एयरपोर्ट फिर से बंद हो गया फॉर कमर्शियल फ्लाइट्स। अभी ये फिर से चालू हो जाएगा। तो हमारा एक तो ये था ही गोल कि हम एयरपोर्ट के आसपास ही कोई विलेज लें जिससे कि लोग डायरेक्ट फ्लाई करके आ सकें और सीधे डिजिटल नोमैड विलेज में जा सकें। तो याक्टेन में कितने लोग रहते थे पहले एंड हाउ वाज देयर लाइफस्टाइल लिविंग? सो याक्टेन में हमने पूरा याक्टेन विलेज नहीं कवर किया। हमने याक्टेन में एक क्लस, तो याक्टेन बहुत स्प्रेड मतलब पहाड़ में ही बहुत स्प्रेडेड विलेज थी। Okay. लेकिन एक क्लस्टर था जिसके अंदर कुछ 8 फैमिलीज हैं ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो रह रहे थे। ईच फैमिली विल हैव अबाउट 5-6 पीपल, आप ऐसे सोच सकते हो। तो 50-60 लोगों का गांव होगा। सो उनका लिवलीहुड क्या है? वो लोग सब अलग अलग चीज़ें करते हैं। जैसे कुछ लोग परिवार में किसी के पास कोई गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। 1-2 लोग किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। और जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो अलग अलग टाइप की जॉब्स करते हैं। जैसे कोई एयरपोर्ट पे काम करता है तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। लेकिन सभी लोग गवर्नमेंट जॉब्स में ही हैं, प्राइवेट में कोई नहीं था। जो बाकी के लोग हैं जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, ईदर दे वर वेटिंग फॉर द जॉब या फिर वो एग्रीकल्चर से अपना काम चलाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो लोग वहाँ पे और इसी से अपना काम गुजारा चलाते हैं। How did that initial team look like when you guys started this? When we started, of course, it all started from the government. It's a government-initiated project. So it was government of India or the government of Government of Sikkim? Sikkim. Okay. Specifically, अगर मैं आपको नाम बताऊं तो जो MP हैं पैक्योंग के इंद्रहांग सुब्बा सर, वो वहाँ की जो MLA हैं पेमिन लेप्चा मैम, और जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं रोहन अग्रवाल सर, इन्हीं 3 लोगों के एफर्ट से और उन्हीं का ही ये आप कह सकते हो कि ब्रेन चाइल्ड है। उन्हीं का ही कमिटमेंट है कि ये बनाना है। और बस उन्हीं ने जब हमें अप्रोच किया था और हम लोगों ने काम शुरू किया। सबसे शुरू में जो टीम रही उसमें प्रेम प्रकाश जो मेरे को फाउंडर हैं, चिराग अग्रवाल जो उस वक्त प्रोजेक्ट लीड कर रहे थे, दीपांश जो पहला इंजीनियर था इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि हम लोगों ने वेबसाइट बनाई, बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टम्स बनाए टेक्नोलॉजी से, इंटरनेट लगवाया, इंटरनेट के राउटर को कॉन्फ़िगर करने से लेके
इंटरनेट की बैंडविड्थ 5G नेटवर्क बन जाए, मैश बनाया विलेज में, क्योंकि विलेज के अंदर हर पॉइंट पे इंटरनेट आना ज़रूरी था। Yes. तो कैसे हम राउटर्स प्लेस करेंगे, ये सब काम करने के लिए एक इंजीनियर था। दिशा नाम की एक इंटीरियर डेकोरेटर आर्किटेक्ट थी, जिनको हम लोगों ने वहाँ पे ऑन ग्राउंड 3 महीने प्रॉपर्टी पे रखा, जिन्होंने रूम का रिनोवेशन पे काम किया। वहाँ पे एक अरुण सर हैं, लोकल मर्चेंट हैं। पैकिंग बहुत छोटी सी जगह है ना, तो वहाँ पे हर सामान नहीं मिलता था, तो हमें कुछ भी चाहिए, चाहे वो एक सुई भी है, तो हमें बस अरुण सर को बोलना होता है और अरुण सर विल फिगर इट आउट कि उसको कहाँ से सोर्स करना है। तो इस तरीके से ये सब कुछ लोग हैं। एक सुषमा प्रधान मैम हैं, उन्होंने वो टूरिज्म डिपार्टमेंट में बहुत सीनियर हैं। शी इज़ एक्चुअली समबडी हु फर्स्ट केम इन एंड कन्विंस द विलेजर्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था ना शुरू में। आप एक विलेज आपने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, सबको एडमिनिस्ट्रेशन को काम कराना है, लेकिन जो लोग वहाँ पे सालों से रह रहे हैं, कई जनरेशन से रह रहे हैं, एकदम से आप पहुँच जाओ उनके घर पे, तो उन्हें तो ऐसे ही लगेगा ना कि यार यू आर इन्वेडिंग देयर हाउस। आप ये तो मतलब अंग्रेजों ने जैसे किया था, वादा किया था, और फिर आपको ऐसा फील तो ऐसे ही होता है कि यार हु आर यू, आप कौन हो, आप आके मेरे को बता रहे हो कि आप मेरे को गरीबी से बाहर निकालोगे। तो इतना आसान नहीं होता। वो जो ट्रस्ट था विलेजर्स का, वो सुषमा मैम लेके आई। उन्हीं ने जाके समझाया कि क्यों अगली जनरेशन के लिए, आपके बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये सब लोग मिलके जब साथ में आए, तभी जाके प्रोजेक्ट चालू भी हुआ और आज इस स्टेट पे पहुंचा। When you guys were interacting with them, जब उनसे बात कर रहे थे वहाँ के विलेजर से, how was their response initially? थोड़ा सा तो डर था, बिल्कुल फियर था उन्हें, लेकिन वो फियर कैसे हुआ उसका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। Yes. और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर उन्हें आगे चल के खुद भी कभी भी ग्रास रूट पे काम करना है, तो मैं उन्हें एक ये फॉर्मूला बता सकता हूँ। Yes. फॉर्मूला है ट्रांसपेरेंट फिनेंशियल्स। Okay. सिंपल सी बात है, आप अगर ये बात कह दो सामने वाले को कि आपका पैसा आप ही के पास है, और उन्हें दिखा दो कि मैं बीच में कुछ नहीं ले रहा हूँ, ना मेरा कोई मोटिव है, ट्रस्ट आ जाता है। जनरली ट्रस्ट कहाँ से नहीं आता ना, ट्रस्ट आता है कि जब आपको पता नहीं चल रहा कि वो पैसे कैसे मूव हो रहे हैं। वो, और चाहे कोई कितना भी गांव वाला हो, कोई कितना भी कैसा भी इंसान हो, सबको एक चीज़ समझ में आती है कि मेरे भले के लिए कौन काम कर रहा है, मेरे भले के लिए कौन नहीं काम कर रहा। वो वाइब कैसे आती है, वो ऑनेस्टी से आती है। तो ग्रास रूट पे काम करना है ना, तो मैं आप लोगों को सभी को यही एडवाइस करूंगा कि ग्रास रूट पे जितनी भी वैल्यू आप ऐड कर सकते हो फाइनेंशियली, वो पूरी ऐड करो, अपना कट नहीं लो बीच में। क्योंकि अगर आप अपना कट लेने लगोगे ना, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बिकम येट अनदर एंटरप्रेन्योर एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग इट एज अ बिजनेस। आपको कभी भी अपने आप को अटैच नहीं करना है उस रेवेन्यू से जो विलेजर्स को जा रहा है या ग्रास रूट पे जा रहा है। तो हमारे केस में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से आज विलेजर्स हमें लिटरली प्यार देते हैं और फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि जितने भी गेस्ट आते हैं उनका डायरेक्ट पेमेंट विलेजर्स के कोऑपरेटिव अकाउंट में जाता है। कोऑपरेटिव अकाउंट हम लोगों ने विलेजर्स का ही बनवाया है, उसमें हम लोग नहीं हैं या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है। 8 फैमिलीज है, 8 फैमिलीज ही कोऑपरेटिव अकाउंट का शेयर लेती है, मतलब वही कोऑपरेटिव अकाउंट की पार्टनर है या मेंबर्स हैं। कोई भी पेमेंट आता है वो कोऑपरेटिव अकाउंट में जाता है। 7 डे की साइकिल में जो हेड ऑफ कोऑपरेटिव होते हैं, जो इलेक्टेड हेड ऑफ कोऑपरेटिव हैं बाय द विलेजर्स, वो बैंक जाते हैं, पासबुक प्रिंट कराते हैं, मनी विड्रॉ करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग विलेजर्स। इसमें हमारा कोई प्ले नहीं है। आप देख रहे हो, हमने पैसे को हाथ भी नहीं लगाया। जब विलेजर्स को ये बात दिखती है कि ये गेस्ट आया, इस गेस्ट ने इतने पैसे दिए, ये मेरे अकाउंट में गए, मैंने विड्रॉ किया और मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तब उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये लोग तो सच में हमारा भला सोच रहे हैं। वाह, इन्होंने तो कोई पैसा ही नहीं लिया। और रोहन, मैं आपको अभी तक ये बहुत प्राउडली बताना चाहता हूँ कि हमने अभी तक एक भी रुपया नहीं लिया है। ये एक सोशल इनिशिएटिव है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है कि इम्पैक्ट डिलीवर होना चाहिए। अगर कभी भी सिक्किम को डिजिटल नोमैड्स रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे, दैट डे आई विल से कि हाँ, आई हैव मेड वॉट एवर आई वॉज मेकिंग। और जिस दिन वो हो जाएगा, मैं श्योर हो जाऊंगा कि वहाँ पे जो लोकल इकोनॉमी है वो ग्रो करने लगी है। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इकोनॉमी ऐसे 4 दिन में नहीं ग्रो करती, इकोसिस्टम बनने में बहुत समय लगता है। लेकिन ये एक नीश है जो हमने पकड़ लिया है।
डिजिटल नोमैड्स के लिए देयर वाज नो अदर प्लेस. सरकार अब सपोर्ट कर रही है, गांव वालों को ये आइडिया समझ में आ गया है. दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर अस टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम. When you mentioned these points, so you guys built rooms for digital nomads coming up there. So how you gonna portray this to an entrepreneur? Why he should choose coming there, and what are the things he gonna get if he comes there, and how does this commercial looks like? So एक idea आ जाए तो he can make the decision of coming there and spending his time and doing his work. सो अगर मैं क्वेश्चन ठीक से समझा तो आप ये कह रहे हो कि कोई बाहर का एंटरप्रेन्योर वहाँ आके अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करे. देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि सिक्किम एक थोड़ा सा अलग टाइप का स्टेट है. ये इंडिया में बाद में आया है, 1975 में मर्ज हुआ है. इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं स्टेट के, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में मुझे श्योर नहीं हूँ मैं कि कोई बाहर से आके वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप प्रैक्टिस कर सकता है क्या. Okay. दूसरी बात ये कि हमारा गोल बाहर से एंटरप्रेन्योर्स को बुलाना नहीं है. हमारा गोल है सिक्किम में ही सिक्किम के लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना. तो अगर कोई बाहर से एंटरप्रेन्योर आना चाहता है तो मैं उनको यही बोलूँगा कि आप आओ, लेकिन आप आओ इस मकसद से कि दैट यू आर गोइंग टू इनकलकेट एंटरप्रेन्योरशिप इन अ लोकल फैमिली. वहाँ पे किसी को सिखा के सेटअप करके यू हैव टू मूव आउट. Okay. क्योंकि अगर हम बाहर से इतना ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स लेके आएंगे तो लाइक आई सेड वो एक माइंडसेट ऐसा हो जाएगा बिजनेस वाला जो कि फिर शायद लोकल पॉपुलेशन को उतना ग्रो ना होने दे, क्योंकि देन दे विल हायर देम फॉर अगेन जॉब्स. और हम यहाँ पे एक फैमिली में एक एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं. हम जॉब्स वाले माइंडसेट से थोड़ा सा बाहर लाना चाहते हैं. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अब अगर फिर भी मुझे बाहर से लोगों को इनवाइट करना है तो मैं किसे इनवाइट करूँगा. मैं ऐसे लोगों को इनवाइट करूँगा जो लोकल लोगों को ये सिखा सकें कि यार ऐसे बिजनेस बनाया जाता है. ये बेसिक्स होते हैं बिजनेस के. एक लेजर कैसे मेंटेन किया जाता है, एक करंट अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है. अगर आपको फंडिंग उठानी है तो आप सिक्किम के बाहर से फंडिंग उठा सकते हो. आपको अगर थोड़ा सा फंड लेना है तो कैसे लेते हो. अगर आपको बिजनेस में लोन लेना है तो कब लेते हो लोन. वो राइट डिसीजंस लेना ना एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Very true. क्योंकि आपको रिस्क लेनी है, आपको स्टॉकिंग करनी है. आपको स्टॉक करना है तो स्टॉक को रिलीज कैसे करना है. आपका स्टॉक अगर डेड हो जाता है तो आपको उसको सॉर्ट करके कैसे उसको बाकी के चैनल से निकालना है. आपको पार्टनरशिप्स कैसे करनी है, आपको दूसरे स्टेट से लॉजिस्टिक्स कैसे सॉल्व करनी है. ये सारी चीज़ें बाहर से जब लोग आएंगे वही सिखा सकते हैं. इसीलिए मैं इनवाइट करूंगा उन सभी लोगों को जो पहले तो ड्रिवन होने चाहिए एक ग्रास रूट इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स के लिए. खुद का एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए वो बाद में सोचें, पहले ये सोचें कि सिक्किम के लोग कैसे एंटरप्रेन्योर बने. एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर मेनी वेज ऑफ, इट कैन बी अ विन विन सिचुएशन. अगर सिक्किम ग्रो करता है और कोई somebody is raising funds from you and if that grows then your fund grows, तो it's not a big deal. Thanks for letting us know who can come over there and क्या मोटो से आ सकते हैं. It's something should be like givers gain. Yeah. Yes, वहाँ पे आओ, वहाँ के बच्चों को सिखाओ, वहाँ के लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, how they can plan the things. So when someone comes there, how that hospitality looks like, how the village people take care of them when they stay. देखिए, इसमें भी बड़ा यूनिक सा एंगल है. एंगल ये है कि आप किसी रिजॉर्ट में अगर जाते हो तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट होता है. Yes. एक बैंक्वेट हॉल होता है, कुछ स्विमिंग पूल होता है, इस टाइप की चीज़ें होती है ना. ये सब नहीं है. लेकिन यहाँ पे क्या है वो बताता हूँ आपको. यहाँ पे है 8 फैमिलीज जिसमें कुछ लिम्बू फैमिलीज हैं, कुछ सुबा फैमिलीज हैं, जो कल्चरली ना मुझे लगता है कि वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कल्चर वाले फैमिलीज होंगे. ये इतने हैप्पी हैं कि ये लोग शाम को अगर हर दिन सडनली डांस करने लगते हैं तो समझ नहीं आता कि ये डांस क्यों कर रहे हैं. आपको और मेरे को अगर अभी हम सड़क पे चले जाएंगे और डांस करने लगेंगे तो कोई तो सोचेगा कि यार ऐसा क्या हो गया, कुछ तो पूछ ही लेगा कि बर्थडे है क्या, कुछ विदाउट अ गुड न्यूज. इट्स वियर्ड, राइट? बट दे डोंट नीड अ गुड न्यूज. दे आर जनरली वेरी वेरी हैप्पी पीपल. सो उनके कल्चर में डांस है, उनके कल्चर में आर्ट बहुत है. तो वो जो याक्टन विलेज है ना, ये आप ऐसा कहते हो वैली ऑफ फ्लावर्स जैसा सोच सकते हो आप. वैली नहीं है, इट्स लाइक अ माउंटेन ऑफ फ्लावर्स कह सकते हो.
तो जहाँ पे भी फ्लावर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे हनी बीज बहुत ज़्यादा होती हैं, शहद बहुत होता है। जहाँ पे भी ये बीज और इंसेक्ट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बर्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो याकटिन में भी यही है कि फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, आप जहाँ देखोगे फ्लावर्स दिखेंगे, बहुत सारे कीड़े दिखेंगे और बहुत सारा बर्ड्स दिखेगा और पाइन वुड्स मिलेंगे। अब इस सेटअप में ये लोग कई सालों से हैं। इन्होंने क्या किया है कि पाइन वुड से ही पूरा सब घर और सब किचन वगैरह बनाए हैं, क्योंकि पहाड़ में बहुत ऊपर रहते हैं तो नीचे से सामान लाना बहुत मुश्किल है। आप ईट और सीमेंट, यू कांट ब्रिंग ऑल दो स्टफ, लाओगे भी तो कंधे पे लाना पड़ेगा आपको। अच्छा। लेकिन जो लकड़ी है वो अवेलेबल चारों तरफ है, पाइन वुड इज एवरीवेयर। तो वो लोग क्या करते हैं कि पाइन ट्री को ही जंगल में पहाड़ में काट के उसी से ही सब कुछ बनाते हैं। तो सब ने क्या किया हुआ है, अपनी अपनी फैमिली के लिए 2-2 रूम्स बना रखे हैं, एक किचन बना रखा है। अच्छा। हर फैमिली ने। और उस पहाड़ पे अगर 8 फैमिलीज हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि 2, 3, 4 डिपेंडिंग अपॉन हाउ बिग द फैमिलीज। कुछ लोगों ने 4 या 6 रूम्स भी बनाए हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन उनकी फैमिली बड़ी है। कुछ लोग की छोटी फैमिली तो उन्होंने 4 रूम्स 3 रूम्स ही बनाए हुए हैं। तो एक क्लस्टर मिलेगा आपको, उसमें एक किचन मिलेगा, फिर एक क्लस्टर मिलेगा, एक किचन मिलेगा, फिर क्लस्टर मिलेगा, एक किचन मिलेगा, और 5 रूम्स 1 किचन। अब इसमें यूनिकनेस क्या है, जब आप आते हो विलेज में you can choose to eat in any of the kitchen you want to. Any kitchen. 8 किचन है, 8 फैमिलीज के। हर किचन में जो वहाँ की फैमिली की हेड है वो कुछ अलग डिश बना रही होती हैं, वो कोई अलग खाना बना रही होती हैं। आज किसी के घर में कोई बहुत ही लोकल सेल रोटी करके बहुत ही अमेजिंग चीज़ है वो बन रही होती है, कहीं पे कुछ और बन रहा होता है, कहीं पे कुछ और बन रहा होता है। सो देयर आर 8 किचन्स। एवरी गेस्ट कैन जस्ट रोम अराउंड द विलेज, उसको जिस किचन में खाना है वो उस किचन में खाना खा सकता है। तो आप चूज करो, आपका इतना बड़ा मेन्यू पॉसिबल नहीं है, 8 किचन्स में खाना बन रहा है। आप ब्रेकफास्ट किसी में करो, आप लंच किसी में करो, आप डिनर किसी में करो, आप कॉफी किसी में पियो। आपको बहुत ज्यादा मन कर रहा है, आप किसी भी दीदी को मिलो, आप उनको बोलो दीदी मेरे को ना आपके हाथ का ये मन कर रहा है, इमीडिएटली शी विल सो हैप्पी कि किसी ने मेरे से कुछ खाने के लिए बोला है। वहाँ पे यार उनका एक्सपोजर इतना कम है कि यू लाइक ऑल द पीपल हु आर कमिंग आर प्रॉब्ली द फर्स्ट सेट ऑफ पीपल जो उन्होंने आउटसाइड कम्युनिटी देखे हैं या बात करी है जिनसे, कभी नहीं। दे हैव नेवर मूव्ड आउट ऑफ पैक्योंग। शायद या कई लेडीज ऐसी हैं जो याकटिन से भी बाहर नहीं निकली, मतलब उन्होंने वो पहाड़ ही नहीं क्रॉस किया कभी। वो आइसोलेटेड थे बहुत लंबे समय तक। इंटरनेट नहीं था, पानी की बहुत मैसिव प्रॉब्लम थी यार, पानी नहीं था। याकटिन जब आया, हमने जब ये विलेज का काम शुरू किया तब हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया कि अगर गेस्ट आएंगे तो गेस्ट कई बार पानी वेस्ट करते हैं या फिर उनको लॉन्ड्री करानी पड़ेगी, हम इस जैसे अभी पानी की सिचुएशन है इसमें नहीं रह सकते। तो गवर्नमेंट ने हमें हेल्प किया, उन्होंने ऊपर एक रिजर्वॉयर बनाया, रिजर्वॉयर से पानी नीचे आया, नलों में पानी आना शुरू हुआ। तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो इस विलेज की अभी जाके पूरी हुई हैं। तो ये लोग मेन स्ट्रीम में अब आ रहे हैं। रोड नहीं था, पानी की दिक्कत थी, पानी की बहुत दिक्कत थी, रोड थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि रोड नहीं थी, लेकिन यार एक ऐसी रोड जो गांव तक जाती है ना वो मेंटेन नहीं होती वो रोड्स। वो है ना एक टाइम के बाद ऐसी रहती नहीं है कि आप उस पर गाड़ी लेके चले जाओ, आपको बहुत सोचना पड़ेगा। 2 बार आप सोचोगे, बहुत ही एडवेंचरस होगे, 4x4 चला रहे होगे तो ही आप यू विल टेक दैट टर्न। तो हमें ये था कि अगर हमें हर गेस्ट को बुलाना है तो मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा। You guys solved that road problem? Yes. फिर पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इलेक्ट्रिसिटी कैसा था पहले? There was मतलब नो बैकअप। और शाम वाम को तो मतलब जब लाइट जाती है तो 2 दिन 3 कितना भी जा सकती है लाइट जब जाएगी। Now there is a backup. Now there is डबल बैकअप, 24/7 का डबल बैकअप है और सोलर का बैकअप भी है। Wow, nice. Then what else? हमने इंटरनेट के 2 कनेक्शन लगवाए हैं अब। तो एक जियो का इंटरनेट लगवाया है, एक एयरटेल का इंटरनेट लगवाया है। इंटरनेट हमने फाइबर कनेक्शन लगवाया है, तो गैंगटॉक से प्रॉपर फाइबर को वाया फॉरेस्ट ट्रैक करके ला के अच्छे से गांव तक पहुंचाए हैं। 2 कनेक्शन। How far is Gangtok from Yaktन? About 1.5 hours. वाह, कितने किलोमीटर्स हैं? किलोमीटर्स में तो मैं श्योर नहीं हूँ कितना, 70-75 होगा, बट पहाड़ों में काफ़ी होता है इतना डिस्टेंस। से you bought that? So वहाँ से कनेक्शन आए हैं इंटरनेट के। वेस्ट मैनेजमेंट हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है उन लोगों को। क्योंकि अभी तक ये लोग क्या करते थे कि आज तक हमेशा से जो भी कूड़ा है वो जला देते हैं। कोई भी कूड़ा हो वो जला देते थे। तो हमें ये था कि ये तो सही तरीका नहीं है, हम कूड़े को जला नहीं सकते।
तो कूड़े को सेग्रीगेट कैसे करते हैं और हर कूड़े को रीयूज कैसे करते हैं, ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग हुई है और कॉन्स्टेंटली चलती रहती है ट्रेनिंग। और इसके ऊपर हम लोगों ने एक प्रॉपर एक तरीका भी बनाया है जिसके अंदर रिवॉर्ड मैकेनिज्म भी बनाया है। दोज फैमिलीज हु आर रियली डूइंग इट बेटर दे विल बी रिवॉर्डेड। फिर हमने ज़ीरो वेस्ट विलेज की ट्रेनिंग कराई है कि कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको मतलब कहीं ना किसी तरीके से वो यूज़ होगा। फिर जितनी भी हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग है वो कम्प्लीटली मिस थी। मतलब आप उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि गेस्ट से कैसे बात करते हैं या रूम में झाड़ू कैसे लगाते हैं। किसी और के रूम में झाड़ू लगाना यार ये कोई मामूली बात नहीं है। आप किसी को नहीं बोल सकते कि आप उस रूम में झाड़ू लगाओ, वो नहीं रहते उस रूम में, वो क्यों झाड़ू लगाएंगे उस रूम में, या किसी की गंदी बेडशीट को क्यों धोएंगे। ये बातें इतनी हमें सिंपल लगती हैं बट इतनी सिंपल होती नहीं है। इसमें ना कल्चरल बायसेस बहुत हैं। इन सर्टेन कल्चर इट इज़ नॉट इवन नाइस टू क्लीन समबडी एल्सेज बेडशीट, राइट। तो हमने एक प्रॉपर वर्कशॉप और ट्रेनिंग और एक्सपर्ट्स के थ्रू ये एक सेटअप बनाया कि कैसे आप इन प्रॉब्लम्स को विद इन द कल्चरल बायसेस सॉल्व करोगे। आप जो नहीं कर सकते लोग उनसे नहीं करवाओगे, जो कर सकते हैं उनसे करवाओगे। कैसे करवाओगे, बाहर करवाओगे विलेज के या अंदर करवाओगे विलेज के, कौन चेंज करेगा कौन नहीं चेंज करेगा, इन सब की ट्रेनिंग हुई है। और ये अब इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अभी हमें जो रिव्यूज़ मिलते हैं उन रिव्यूज़ में पीपल आर सेइंग कि इंटरेक्शन विद द लोकल्स इज द हाईलाइट ऑफ द एंटायर स्टे। जो एक ज़माने में वाज अ प्रॉब्लम कि इंटरेक्शन नहीं हो पाता था, लोग इंटरेक्शन नहीं कर पाते थे, हिंदी नहीं बोल पाते थे, वो धीरे धीरे इतना जल्दी कैच कर रहे हैं, इतना कैच कर रहे हैं अपनी, चाहे साइन लैंग्वेज से बात करें, चाहे वो एफर्ट इतना देते हैं, अब वो इंटेंट इतना स्ट्रांग है उनका बात करने का कि लोग ओवरवेलम हो जाते हैं। ओके, सो याक्तिन में आपने क्लस्टर चूज़ किया है, राइट। सो अभी ये तो शुरू हो गया, नाउ टूरिस्ट कैन विजिट, yes, now entrepreneur can visit, digital it's nomads open. can visit, Digital writers nomads can visit, right. singers can visit, artists can visit, Achha, anyone who needs productivity, focused hours, isolation, they can visit. good co-working spaces with the view of Kanchenjunga valley, Kanchenjunga, okay, वो लोग आ सकते हैं। what next, or when you guys were building this, so how did financial look like, कि कैसे गवर्नमेंट का सपोर्ट आ गया कि लोकल से फंड रेज किया क्या आप लोगों ने, सो हाउ डिड यू गाइस मैनेज दिस? देखिए अभी तक तो हम लोगों ने कोई ही फंड रेज नहीं किया है, अभी तक ये पूरा कम्युनिटी एफर्ट से ही चल रहा है। अभी तक चाहे आप किसी की भी बात करो, हम लोगों से हेल्प लेते हैं, वॉलंटियर्स के थ्रू काम करते हैं। जैसे ये पॉडकास्ट का ही एग्जांपल, आज आप हमारी बात अगर आगे पहुंचा रहे हैं तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप मेरे से कुछ नहीं ले रहे हो, ना ही कोई फेवर ले रहे हैं, लेकिन एक तरह से आप भी इस इम्पैक्ट के लिए कर रहे हो ये। इसी तरीके से हमें और भी बहुत सारे अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने हमें एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे हेल्प किया है। लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनके लिए, जो कमोडिटी है, जिनके लिए पैसे देने पड़ते हैं। सर्विसेज के लिए तो हमने नहीं पे किया, लेकिन जैसे कमरों में लैंप लगाया है, गद्दे लगाए हैं, पलंग बनाए हैं, टेबल कुर्सी लगाई है, लाइटें लगाई हैं, सोलर लाइट्स लगाई हैं, ये कैसे किया? इसको करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने हमारी बहुत हेल्प करी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लोकल फैमिलीज़ हैं उनको छोटे छोटे अमाउंट के लोन्स दिलवाए। ये लोन्स जो हैं, इन लोन्स में सरकार मदद भी करती है उन लोगों की, लोन्स को चुकाने में थोड़ी सी लीनियंट रहती है कि लोन्स, ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट लोन्स होते हैं, इनके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत लीनियंट होते हैं इन लोन्स के। दूसरा, हमारा ये जो कोऑपरेटिव अकाउंट है, इसी में जो अब आमदनी आ रही है इसी से ही ये लोन चुक जाएगा। तो एक तरह का आप ये कह सकते हो कि हमें वो गांव वालों ने जो लोन, छोटा छोटा लोन लिया, उस लोन से उनके कमरे रेडी कर दिए हमने। तो ऐसे समझिए जैसे किसी एक गांव वाले ने बोला कि मुझे 2 कमरे ही मैं कर पाऊंगा, तो उसको एक छोटा लोन दिलवाया, उसके पैसे से उसके 2 कमरे रेडी कर दिए। सो देन व्हेनेवर ही इज मेकिंग मनी वो लोन चुक जाएगा। तो उसको 6-8 महीने 10 महीने के बाद उसके पास 2 रेडी रूम्स होंगे जो कांस्टेंट इनकम देंगे और लोन भी नहीं होगा। इस तरीके से हम लोगों ने बनाया। When you were part of this initiative, like since 6 months back, right, you joined this, you were staying at Bangalore working for an MNC, so how did you manage both the things? So how often you used to visit Yakthin and see the progress?
See, I think we had very clear roles. मेरा रोल उतना ऑन ग्राउंड नहीं है, मेरा रोल रिमोट ज़्यादा है. Prem used to be there at the property most of the time because he looks at the operation and the execution on ground. मेरा सपोर्ट हमेशा डिजिटल टेक्नोलॉजी, पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस इस साइड पे ज़्यादा रहा. तो मैं सिक्किम अभी तक 2 ही बार गया हूँ और हर बार जब भी गया हूँ तो हफ्ता रह के आया हूँ और ऑफिस से छुट्टी लेके जाता था. क्योंकि ये एक एनजीओ जैसा, या आप कह सकते हो कि एक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट था, तो इसीलिए कभी भी, और मेरी इसमें कोई आमदनी नहीं है, इसमें कोई मेरी सैलरी नहीं है, इसीलिए कभी किसी को इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं साइड में अपने हॉबी की तरह एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा हूँ. और दूसरा, हमेशा रात को ऑफिस से आने के बाद 2 घंटे 2.5 घंटे कोशिश करता था काम करने की, वीकेंड्स पे काम करता था. तो मोस्टली तो ऐसे ही काम हुआ कि रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा ऑफिस के बाद निकाल दिया, वीकेंड पे 2 4 5 घंटे निकाल दिए और इसी से कर रहा था. अभी ये जॉब छोड़ना ही इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि नाउ दिस इज़ नॉट सफिशिएंट. अभी तक तो ये पायलट था, अब ये पायलट लॉन्च हो चुका है, हमें अर्ली सक्सेस मिली है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर सच में ही डिजिटल नोमैड्स के संग जस्टिस करना है तो हमें बहुत सारा और आसपास पेरिफेरल सर्विसेज बनानी पड़ेंगी. एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा. पैक्योंग को एज अ डिजिटल नोमैड हब बनाना पड़ेगा और सिक्किम में दूसरी जगहों पे भी कुछ और क्लस्टर्स में काम करना पड़ेगा सो दैट डिजिटल नोमैड्स कैन आल्सो मूव अराउंड विद इन सिक्किम. ओके, सो अभी एक तो बन गया क्लस्टर, सो व्हाट नेक्स्ट, कि कहीं और पे प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है? नहीं, अभी पैक्योंग में ही और करेंगे. अभी सिर्फ 18 रूम्स हैं यहाँ पे और ये रूम्स कम पड़ रहे हैं हमें ऑलरेडी. तो हम अभी इसी विलेज के अंदर ही हम शायद अबाउट 28-30 रूम्स कर देंगे. और मुझे लगता है कि फिर हमें लॉन्ड्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. तो थोड़ा सा फंड्स को लेके हम अभी वरिड हैं क्योंकि बार बार गांव वालों को लोन नहीं दिलवा सकते. मिनिमल, और लोन बहुत छोटे अमाउंट का होता है तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है. अब हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं ना, वो थोड़े से एक्सपेंसिव प्रॉब्लम्स हैं. जैसे रात को अंधेरा ना हो जाए, एक वेल लिट स्ट्रीट चाहिए हमें, एक वेल लिट चाहिए. अब वेल लिट चाहिए और जहाँ बिजली जाती है तो आप पावर बैकअप के संग स्ट्रीट लाइट्स नहीं जला सकते. तो उसके लिए सोलर चाहिए. तो बहुत सारी ऐसे पार्टनरशिप्स हैं जो हमें करनी है, जिसके ऊपर मैं लगा हुआ हूँ. वी इनकरेज प्राइवेट कंपनीज टू कम फॉरवर्ड एंड डू देयर CSR फॉर अस. इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं CSR की. जो लोग नहीं जानते, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और हर प्राइवेट कंपनी करती है. तो हम भी ये चाहते हैं कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स, large companies, they come forward and they support this initiative and bring some of the basic infrastructure there. उसमें हम लगे हुए हैं and I think that is going to be the next big challenge, bringing partners on board. So while building this, what were the challenges you guys faced? What are the hurdles you guys faced and how did you guys overcome it? एक तो मैंने आपको बताया विलेजर्स के संग कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल था. उस हर्डल को हमने कैसे क्रॉस किया कि हमें जो लोकल सपोर्ट था, जो सुषमा मैम थी, वो खुद उन्हीं कम्युनिटी से आती भी हैं और उनका एक बहुत पुराना ट्रस्ट है. शी हैज़ बीन पार्ट ऑफ द टूरिज्म डिपार्टमेंट ना, सो शी हैज़ बीन वर्किंग इन दैट एरिया. तो उनको अगर हमने जब कन्विंस किया तो उन्होंने उनको कन्विंस किया. दूसरा, ट्रांसपेरेंसी, कि हमने जो मनी की ट्रेल है वो हमेशा हम सबको दिखा के चलते हैं कि दिस इज हाउ मनी इज फ्लोइंग एंड वी आर नॉट अ मिडिल मैन ऑल्सो. हम बीच में है भी नहीं. ये पैसा सीधे आप ही के पास आता है और आप ही से सीधे जाता है, हमें नहीं मिलता कहीं पे भी कोई पैसा. दूसरा जो हमें बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आता है फंड रेजिंग में. फंड रेजिंग में देखिए, ये लाइक आई सेड, दिस इज नॉट अ मनी मेकिंग आइडिया. तो इसमें कोई वेंचर कैपिटलिस्ट पैसे तो नहीं डालेगा. इसके अंदर तो CSR का ही फंड आ सकता है और CSR फंड्स को आने के लिए बहुत सारे ना कंप्लाइंसेस होते हैं, बहुत सारा पेपर वर्क होता है. तो आपको ये सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, ये सर्टिफिकेशन चाहिए होता है. तो हमारे लिए वो भी एक काम है, बहुत सारा काम है वो भी, जिसके लिए अगर हमें कोई फंड लेके आना है तो वी शुड बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड विद ऑल द पॉसिबल कंप्लाइंसेस दैट पर्टिकुलर कंपनी रिक्वायर्स. ये उनकी बिल्कुल करेक्ट डिमांड है. लेकिन यार इंडिया में ये सभी चीज़ें समय लेती हैं, काम है और उसके लिए हमें लोग चाहिए होते हैं.
तो अभी हमने रिसेंटली ही एक CA CS प्रोफाइल के एक इंसान को ऑनबोर्ड किया, सो दैट वी कैन स्टार्ट गेटिंग इनटू द कंप्लायंसेस पार्ट ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि अभी तक तो हम हॉबी की तरह चला रहे थे ना, लेकिन वंस यू स्टार्ट गेटिंग द फंड्स तो आपको सीरियसली काम करना पड़ता है, और फिर वो थोड़ा सा तो मुश्किल हो ही जाता है जब आप पेपर वर्क में घुस जाते हो. Yes, so how did media cover this initiative? And this is a national media news now. Yeah. A lot of IAS academies have been covering about this, might be expecting a question on this. So can you brief on this more? So yeah, of course. So basically there is a department in Sikkim, government का ही department है, जो मीडिया और प्रेस रिलीजेस हैंडल करता है. हम लोगों का अभी रिसेंटली ओपनिंग हुआ था ऑन 14th of July. वी ओपन द विलेज. जब हमने ये विलेज ओपन किया तो ऑफ कोर्स दिस इज द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज. और सो इट इज नो लाइक पैक्योंग को आप इंडियाज फर्स्ट डिजिटल बुला रहे हैं कि याक्टेन को बुला रहे हैं? याक्टेन को बुला रहे हैं. पैक्योंग विल बी इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड हब. हाँ, उसके अंदर बहुत कुछ आता है. विलेज तो सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन डिजिटल नोमैड्स को बहुत कुछ और चाहिए होता है. लाइक आई सेड ना, कोवर्किंग स्पेसेस भी, इकोसिस्टम चाहिए होता है पूरा का पूरा. तो अभी हम विलेज के लेवल पे सॉल्व कर पाए हैं. और विलेज के विद इन विलेज एक डिजिटल नोमैड विल कवर एवरीथिंग. जैसे हमने 3 कोवर्किंग स्पेसेस बनाए हैं विद इन द विलेज. हम लोगों ने एक प्रोजेक्टर रूम बनाया है जहाँ पे आप बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हो. हर रूम के अंदर एक अलग राउटर लगाया है, तो आपको ऐसा नहीं है कि शेयर्ड बैंडविड्थ मिलती है. हम लोगों ने कोशिश ये करी है कि जब लोग रूम में बात मीटिंग कर रहे हैं तो वो साउंड प्रूफिंग रहे. हम लोगों ने इवनिंग वॉक पाथ्स, सुबह मॉर्निंग में ट्रैक्स को अच्छे से हाईलाइट करना कि जिससे लोग मॉर्निंग वॉक पे जा सकें, स्टे हेल्दी रहें. कई सारे डिजिटल नोमैड्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप की डाइट पे रहते हैं, स्पेशल डाइट्स पे रहते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें. इन चीज़ों का ध्यान रखा है कि जो प्रोडक्टिविटी फूड होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन फूड होता है, नींद कम आती है इसमें, इस टाइप का फूड सर्व करें. तो इतना हमने ध्यान रखा है. अब लेकिन कमिंग बैक टू सवाल, आपने क्वेश्चन ये पूछा कि प्रेस ने कैसे कवर किया. हमें प्रेस ने ऐसे कवर किया कि जब ये हमने ओपनिंग करी तो जो हमारी वहाँ पे MLA हैं, पेमिन लेप्चा मैम, वो खुद आई, उन्होंने ही ओपनिंग करी. जो रोहन अग्रवाने सर हैं, IAS ऑफिसर्स हैं जो वहाँ के, वो खुद आए, उनकी वाइफ आई, टूरिज्म डिपार्टमेंट से आए लोग. और आसपास हमने देखा कि विद इन सिक्किम देयर वाज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी अबाउट दिस. तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी हम लोगों ने नोटिस किया कि कई सारे इन्फ्लुएंशियल लोग ओपनिंग में आए. जब ये लोग सब आए तो सडनली मीडिया केम ऑटोमेटिकली, प्योर ऑर्गेनिकली. कुछ भी हमारा, मैं नहीं कहूँगा कि हम जानते भी नहीं हैं किसी भी मीडिया हाउसेज में ऑनेस्टली, और ना ही हमारा कोई बजट है. बट बिकॉज आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी अमंग सिक्किम, द ओपनिंग वेंट वेरी वेल. जब ओपनिंग अच्छी हुई, जो मैंने आपको बताया कि एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो मीडिया और प्रेस रिलीजेस देखता है, they made one release on their official channel about India's first digital nomad village, and from there suddenly we started getting a lot of inquiry from Hindu, from NDTV. Everyone wanted to talk about it. I think the reason is कि अभी हम सभी को पता है कि इंडिया में every second person or anyone who is working digitally is a digital nomad. तो जो ऑडियंस है आज मीडिया की, उसमें डिजिटल नोमैड्स आर देयर. मतलब हम सभी की ऑडियंस में डिजिटल नोमैड्स हैं. तो एक इतनी रेलेवेंट न्यूज़ थी जो कि वर्थ थी शेयर करना. सिमिलरली इंस्टाग्राम पे भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम चैनल्स जो जेन जी या यूथ फॉलो करता है, मैं नहीं फॉलो करता ऐसे चैनल्स को, दे कवर्ड दिस न्यूज़ ऑर्गेनिकली बिकॉज इट वॉज रेलिवेंट फॉर देयर ऑडियंस. तो मुझे लगता है कि प्रेस रिलीज सक्सेसफुल होने का एक ही रीज़न है कि दिस इज़ अ वेरी रेलिवेंट प्रोजेक्ट फॉर टुडेज वर्ल्ड. रेलेवेंसी वॉज द की हेयर. आप अगर आगे चल के भी कोई भी ऐसा काम करते हो जो एक मासेस के संग कनेक्ट होता है और आपको वो रिलेट कर पाता है कि हाँ यार, यू आर सॉल्विंग माई प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि मीडिया इज नेवर शाइंग अवे फ्रॉम कवरिंग दोज टॉपिक्स एंड दे आर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ अ टॉपिक. तो वी वर जस्ट रेलिवेंट. That's why we got covered. Wow. And yeah, so we discussed a lot about India's first digital nomad village.
coming back to you, your journey. So as you mentioned, you have quit TVS. So what plans next? दोस्त अभी तो देखो नोमैड सिक्किम बनाएंगे, Okay. बहुत रिलीजियसली नोमैड सिक्किम बनाएंगे। और So why is this personal? When you were saying that, I can see that thing, that some personal connect. नोमैड सिक्किम बनाएंगे क्योंकि मैं खुद डिजिटल नोमैड हूँ ना यार, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ आज की तारीख में। आई हैव लिव्ड इन गोवा फॉर 3 years एंड आई फेल्ट आई हैव मेड अ प्लेस इन गोवा ऑल्सो बिफोर। हमने मॉर्जिम में एक को वर्किंग स्पेस बनाया था। Okay. और वहाँ पे मुझे यही प्रॉब्लम हुआ कि एक छोटे से को वर्किंग स्पेस से डिजिटल नोमैड्स नहीं आते, दे वर स्टिल डिस्ट्रैक्टेड। और वो डिस्ट्रैक्शन एक इतना मैसिव प्रॉब्लम था। तो जब मैं सिक्किम गया तो मुझे वो प्रोडक्टिविटी की फील आई। मैं जब वो विलेज एंटर किया, मुझे लगा, मैंने काम किया वहाँ पे रह के, और मुझे समझ में आया कि यहाँ पे फोकस आवर्स आर मैसिव। सुबह 4:30 बजे वहाँ पे सन आ जाता है, 4:30-5 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। 5 बजे, 5 बजे से जब तक आपका ऑफिस खुल रहा है आप पूरा काम खत्म कर दोगे। 9 बजे तक आप इतना काम कर दोगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि यार अब मैं बाकी के दिन क्या करूँ। 5 to 9 आप एक बार आप जाके देखो रोहन, आप प्लीज जाओ, एक बार रहो उन रूम्स में। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि सुबह 9 बजे से पहले जब तक ये ऑफिस में लोग आएंगे तब तक आप अपना पूरा काम खत्म कर चुके। यू हैव रिप्लाइड एवरी मेल ऑफ पॉसिबल। आपको जो डॉक्यूमेंट लिखना था आपने लिख दिया होगा, आपको जो स्ट्रैटेजी बनानी थी आपने बना ली होगी। इतना फोकस है वहाँ पे। सिर्फ चिड़ियाओं की आवाज़ है, चिड़ियों की आवाज़ है, सिर्फ फ्लावर्स का व्यू है, सिर्फ पहाड़ का व्यू है, फ्रेश एयर है, बिल्कुल फ्रेश एयर, क्लाउड्स हैं, अच्छा खाना है, ऑर्गेनिक फूड है, छोटे छोटे ट्रेल्स हैं वॉक करने के लिए। और क्या चाहिए होता है, यही चाहिए। Wow. So when you mentioned you wanna focus on building Sikkim, nomad Sikkim, right? So with that, how you gonna take care of your families? तो यार मेरा 15-20 साल का करियर हो गया है। मतलब अगर मैं ऐसे जॉब टू जॉब और हैंड टू हैंड माउथ रहूँगा तो मैं नहीं चला पाऊँगा। लाइक आई सेड, मैंने पहले भी कंपनीज बनाई हैं और मैंने मेरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है नहीं, मैंने अपने खर्चे नहीं बढ़ाए बहुत ज़्यादा। और इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स पे पहले भी काम किया है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। मैंने एडोलसेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक के ऊपर क्विकसैंड करके एक डिज़ाइन स्टूडियो है, उनके संग काम किया है। मैंने भूटान में बच्चों को पढ़ाया है खुद रह के। तो ये सवाल तो हमेशा आया है मेरे दिमाग में। मैंने बीच में एक स्टार्टअप है जो गर्ल्स की मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर जो टैबू है उसको हटाने के ऊपर काम करता है, मैंने उनके संग वॉलंटियरिंग करी है। मैंने तिलोनिया में बेयरफुट कॉलेज है जो सोलर मामाज प्रोजेक्ट पे काम करता है। मतलब अफ्रीका में जो गांव में औरतें होती हैं उनको सोलर लाइट्स बनाना सिखाते हैं, सो दैट वो यहाँ पे आए, सोलर लाइट बनाना सीखें और फिर वापस जाके अपने गाँव में सोलर लाइट्स बनाएं। तो ये सवाल तो हर बार आता है मेरे मन में, हर 2 साल 3 साल बाद, कि मैं घर कैसे चलाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा इस पे काम करूँगा। जब मुझे ऐसा लगेगा कि अब मुझे वापस से कॉर्पोरेट जॉब में जाना पड़ेगा तो वापस चला जाऊँगा। तो लेकिन जितना समय बीच बीच में मिल जाए, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल काम करो, वापस मूव कर जाओ। थोड़ी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी ना दोस्त। हमेशा पैसा कमा के भी कोई पॉइंट नहीं है। मतलब इतना पैसे का भी क्या करोगे, खा थोड़ी जाओगे। True. So any one message or this thing you wanna give it to our viewers? So what will be that? आई विल से कि हर 2-3 साल कॉर्पोरेट जॉब करो और फिर 1 साल के लिए सोशल सर्विस करो। इससे आपके कर्म अच्छे रहेंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, दिमाग अच्छा रहेगा, और इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज द किड्स आर लुकिंग एट यू। अगर हम सब लोग जब एक टॉक्सिक जॉब में जाते हैं और शाम को स्ट्रेसफुल वापस आते हैं, हमारे चेहरे पे दिखता है, हमारे बच्चे देखते हैं वो चीज़, फिर वो एक इम्प्रेशन बनाते हैं कि अच्छा दुनिया तो इतनी ही ख़राब है। लेकिन ऐसा है नहीं। तो प्लीज़ सभी लोग कॉन्फिडेंट हो जाओ। अगर आप लोगों के पास स्किल है और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो यू विल नेवर बी आउट ऑफ जॉब। और अपनी स्किल्स को नॉन मॉनेटरी जगहों पे भी लगाओ। सिर्फ पैसे को ही वेल्थ नहीं कहते। हमने शुरू भी इसी टॉपिक से किया था कि वेल्थ जो होती है ना वो बहुत सारे टॉपिक से मिला के होती है, जिसमें मनी इज वन कॉम्पोनेंट, योर नेटवर्क इज अनदर कॉम्पोनेंट, योर कर्मा इज अनदर कॉम्पोनेंट, योर हेल्थ इज अनदर कॉम्पोनेंट, योर मेंटल हेल्थ इज अनदर कॉम्पोनेंट। आप कहाँ रह रहे हो, आप क्या पोल्यूशन में हवा कर रहे हो, आपकी पानी की क्वालिटी क्या है, ये सब मिला के आपका वेल्थ होता है। अगर आप बहुत गंदा पानी पी रहे हो और बहुत अमीर हो
और कोई एक आदमी बहुत साफ पानी पी रहा है लेकिन कम पैसे वाला है, तो कौन अमीर है यार? मतलब ये कोई सवाल का जवाब। तो बच्चों को यही, या किसी को भी मैं यही एडवाइस करूँगा कि अपना साथ साथ में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके चलो, इट विल बी वेरी फुलफिलिंग। True, very true. And we discuss a lot of things. We discuss about your journey, about your corporate life, about India's first digital nomad village, Yak 10. We discuss about the plans you guys executed. We discussed about the lot of up and downs, and we discussed about the future. And I wish all the best to you guys Thank you so much. building this. And thanks for coming on the podcast and sharing this valuable, inspirational story about what you guys are building. Thank you. And thank you very much. Thank you. Thank you so much. Keep.